دہلی میں وہ کون ہے جس نے عزت جل اللہ کو نہیں دیکھا؟ میانہ قد، بہت نہیں جسم، کسی قدر لمبا چہرہ، بڑی بڑی روشن آنکھیں، آنکھوں کے نیچے کی ہڈیاں بہت ابری ہوئی، لمبی گردن، چوکا ذرا اونچا، پتلی ستواں ناک، بڑا دہانہ، گہری سانولی رنگت، سر منڈا ہوا، چھدری داڑھی، کولوں پر بہت کم، تھیوڑی پر زیادہ لبیں کتری ہوئی، 70 برس سے اونچی عمر تھی، بال سفید بھک ہو گئے تھے لیکن پھر بھی داڑھی میں اکا دکا سیاہ بال تھے، چہرے پر جھریاں تھیں لیکن باوجود اس پیرانہ سالی اور نقاہت کے آواز میں وہی کرارا پن تھا۔ سبز کم خواب کا ایک برقع پاجامہ اور سفید ڈھاکے کے ململ کا کرتا زیب بدن تھا۔ سامنے ایک چوکی پر جامدار کے خفتان اور کار چوگا سیاہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ اب رہے مرزا فخرو تو وہ عین مین باپ کی تصویر تھے۔ 32-33 برس کی عمر تھی، فرق تھا تو بس یہی کہ وہ بوڑھے تھے یا جوان۔ ان کا رنگ بڑھاپے کی وجہ سے ذرا کلونس لے آیا تھا۔ ان کا کھلا ہوا گہواں رنگ تھا، ان کی داڑھی سفید تھی، ان کے سیاہ، ورنہ یہی معلوم ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ لیٹے ہیں اور ایک بیٹھے ہیں۔ دونوں نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور بادشاہ سلامت نے فرمایا، اماں تمہارا ہی نام کریم الدین ہے؟ کہیں باہر کے معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا، خانہ زاد پانی پت کا رہنے والا ہے۔ بچپن ہی سے حضرت صلی اللہ کے سایہ عاطفت میں آ رہا ہے۔ فرمایا، اماں ابھی تمہارا ہی ذکر مرزا فخرو کر رہے تھے۔ میرا خود جی چاہتا ہے کہ پہلے کی طرح دیوان عام میں مشاعرہ کروں، مگر کیا کروں، زمانے کی ہوا ایسی بگڑ گئی ہے کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ صحیح ہے کہ باہم پیشہ دشمن، لیکن خدا محفوظ رکھے ایسی دشمنی بھی کس کام کی کہ 2 گھڑی مل جل کر نہ بیٹھنے دے۔ دیوان عام میں مشاعرہ ہوتا تھا، وہ کچھ دنوں ٹھیک چلا، پھر میں نے دیکھا کہ بے لطفی بڑھ رہی ہے، اس لیے بند کر دیا۔ منشی فیض پارسا نے اجمیری دروازے کے باہر غازی الدین خاں کے مدرسے میں مشاعرہ شروع کیا۔ وہ تیلیوں کی طرح بکھر گیا۔ وہ تو کہو غنیمت یہ ہوا کہ ردیف میں تیلیاں ہی تھیں، کہیں خدا نخواستہ اگر ردیف میں کڑیاں ہوتی تو خدا معلوم کتنوں کی سر پھوٹ جاتے۔ تم مشاعرہ تو کر رہے ہو مگر ان ہاتھیوں کے ٹکر کیسے سنبھالو گے؟ استاد ذوق تو بیچارے بے زبان آدمی ہیں، مگر خدا بچائے حافظ ویران سے، وہ ضرور لڑ مڑیں گے۔ اور تم جانتے ہو، اندھے کی داد نہ فریاد، اندھا مار بیٹھے گا۔ کسی نے اگر مشاعرے میں استاد پر ذرا بھی چوٹ کر دی تو ان نابینا صاحب کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میاں تم سے یہ کام سنبھلتا نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ قبلہ عالم، میری کیا ہمت ہے جو میں اتنے بڑے کام میں ہاتھ ڈال سکوں؟ مشاعرے کا سارا انتظام نواب زین العابدین خاں عارف نے اپنے ذمے لیا ہے۔ فرمایا، تو مجھے اطمینان ہے، یہ لڑکا بڑا ہوشیار اور ذہین ہے، مرزا نوشہ اور مومن خاں کو وہ سنبھال لے گا۔ رہے استاد ذوق، ان سے میں کہہ دوں گا، خدا نے چاہا تو اس طرح مشاعرہ چل جائے گا۔ مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ مشاعرے سے پہلے ان لوگوں سے مل لو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت پر انکار کر بیٹھے۔ میں اور مرزا سبو تو آ نہیں سکتے، ہاں مرزا فخرو کو اپنی جگہ بھیج دوں گا اور انشاءاللہ اپنی غزل میں بھی بھیج دوں گا۔ ہاں یہ بتاؤ کہ تم نے طرح کیا رکھی ہے؟ طرح ہی تو بڑے جھگڑے کی چیز ہے، یہ ذرا سوچ سمجھ کر دینا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بازو سے آواز آئی، اے ہے یہ انا بچے کو کیا بے طرح سلگائی ہے؟ یہ سنتے ہی بادشاہ سلامت نے فرمایا، لو بھائی، یہ خود بخود فال گوش مل گئی تو تم اس مشاعرے میں کوئی طرح ہی نہ دو۔ جس شخص کو جس بحر، جس ردیف، جس قافیے میں غزل پڑھنے کو دل چاہے پڑھے،
ना लेना एक ना देना दो। मैंने अर्ज़ की, पीर ओ मुर्शिद तारीख़ फरमाया 14 रजब मुकर्रर कर दो। दिन भी अच्छा है, चांदनी रात भी होगी। आज 5 तारीख है, 9 दिन बाकी हैं। इतने दिनों में बहुत कुछ इंतज़ाम हो सकता है। अंग्रेज़ी की 20 जुलाई पड़ेगी, मौसम भी ठंडा हो जाएगा। अच्छा अब खुदा हाफ़िज़। मैंने उम्र व दौलत व इकबाल को दुआ दी और खुश खुश उल्टे कदमों वापस हुआ। मिर्ज़ा फ़खरू बीच में कुछ न बोले, मगर मैं समझता था कि ये सब कुछ किया धरा उन्हीं का है, वरना कहाँ मैं और कहाँ खलूत शाही। सच है, बिगड़ी बन जाती है जब फज़्ल खुदा होता है। यहाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए हुजूर इतनी मुश्किल ना थी जितना ये रुखसत होकर उल्टे पाँव चलना हुआ। ज़मीन पाँव को नहीं लगती थी, इसलिए 2-4 कदम ही चला होऊंगा कि पीछे एक दीवार से टक्कर खाई। इस टक्कर से नहीं संभला था कि नहर में पाँव जा पड़ा। खैर, हजार दिक्कत बाहर ही निकल आया। इधर मैं निकला, उधर चौबदार साथ हुआ, उसको इनाम दे दिलाकर टाला। हकीम साहब के पास आया, वो मेरे इंतज़ार में ही बैठे थे। इनसे तमाम वाक़या बयान किया। फरमाने लगे, मौलवी साहब, बात यह है कि मिर्ज़ा फ़खरू बहुत दिनों से मुशायरे के लिए बेचैन हो रहे थे। इन्हीं की ये कारगुजारी है, वरना भला ये मामला इस तरह थोड़ी तय होता। मगर चलो, तुम्हारा काम बन गया। मियाँ आरिफ से जाकर कह दो, वो मेरे ही यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे होंगे। हकीम साहब के मकान पर पहुँचा तो देखा कि वाक़ई नवाब साहब मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। इनसे हालात बयान किए। कहने लगे, चलो ये मुश्किल तो आसान हुई। अब तुम ये करो कि कम से कम उस्ताद ज़ौक़, मिर्ज़ा नौशा और हकीम मोमिन खां के मकान का गश्त लगा डालो, मगर देखना ज़रा फूंक फूंक कर कदम रखना। ये तीनों बड़े दिमागदार आदमी हैं। अगर ज़रा भी तुमसे बातचीत में लर्जिश हुई तो याद रखो कि बिना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जब देखो कि उनमें से कोई हाथों से निकला ही जाता है तो मेरा नाम ले देना। क्या अजब है कि मेरा नाम सुनकर राज़ी हो जाएं। दूसरी बात यह है कि मुबारकनिसा बेगम की हवेली में, जिसमें तुम्हारा मतबा है, 2 रोज़ में खाली करके बिल्कुल मेरे हवाले कर दो। मुझे वहाँ नशस्त का इंतज़ाम करना होगा। मैंने कहा, और मैं कहाँ जाऊँ? फरमाने लगे, मेरे मकान पर 8-9 रोज़ के लिए आ जाओ। तुमको तकलीफ़ तो होगी, मगर क्या किया जाए। जब किले के लोगों को बुला रहे हैं तो उन्हीं के रुतबे के मुवाफिक मकान को भी दुरुस्त करना होगा। देखिए, खर्च क्या पड़ता है। मैंने कहा, मुशायरे में खर्च ही ऐसा कौन सा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये उठ जाएंगे। ये सुनकर नवाब साहब मुस्कराए। कहा, मियाँ करीमुद्दीन, तुम क्या जानो कि ऐसे मुशायरों में क्या खर्च होता है, क्या खर्च हो जाता है। 1000-2000 में भी अगर पुत पूरा हो गया तो समझो कि सस्ते छूटे। ये सुनकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मैंने कहा, नवाब साहब, अगर सूरत हाल ये है तो मेरा ऐसे मुशायरे को दूर ही से सलाम। मदबा तो मदबा, अगर अपने आप को भी बेच डालूं तो इतनी रकम ना उठे। फरमाने लगे, भाई तुम इस खर्च के झगड़े में ना पड़ो, खुदा ये मुश्किल भी आसान कर देगा। जब मैंने इस काम में हाथ डाला है तो मैं जानूं और मेरा काम जाने। तुम बैठे तमाशा देखो, मगर हाँ, कल तक मकान खाली कर देना। 9 ही दिन तो रह गए हैं, रात कम और सवांग बहुत है। अब जाओ, खुदा हाफिज़। तुम थक भी गए हो, ज़रा आराम ले लो और कल सुबह ही से इधर मकान खाली करने की फ़िक्र करो। उधर तुम तीनों उस्तादों के मकान का चक्कर लगाओ। मकान खाली हो जाए तो फ़ौरन मुझे इत्तला देना और ख़ुद मेरे यहाँ चले आना। इसमें शर्म की कौन सी बात है। आखिर मेरी ही वजह से तुम अपना मकान छोड़ रहे हो। वहाँ से निकलकर मैं अपने घर आया। मदबा को बंद करते हुए और सामान समेटते समेटते शाम हो गई। सुबह उठकर अपने पहनने और ओढ़ने का सामान तो नवाब ज़ैनुल आबदीन खां के मकान पर रवाना किया और ख़ुद को बिल्ली दरवाज़े की तरफ चला कि पहले उस्ताद ज़ौक़ ही से बिस्मिल्लाह करूं। काबली दरवाज़े के पास ही उनका मकान है। मकान बहुत छोटा है, छोटी सी देवड़ी है, उसमें एक तरफ जाए ज़रूर है। अंदर सहन इतना छोटा है कि 2 पलंग बिछने के बाद रास्ता चलने के लिए मुश्किल से जगह रहती है। सामने छोटा सा दलान है और उसके ऊपर एक कमरा है। सहन में से जनाने मकान में रास्ता
जाता है। जब मैं पहुंचा तो उस्ताद सहन में बांध की खड़ी चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। दूसरे चारपाई पर उनके चहीते शागिर्द हाफिज़ गुलाम रसूल वीरां बैठे थे। ये अंधे हैं और इन्हीं से होशियार रहने के लिए हज़रत जहाँ पनाह ने इरशाद फरमाया था। उस्ताद ज़ौक़ कद-ओ-क़ामत में मुतवस्सित अंदाम हैं, रंग अच्छा सांवला है, चेहरे पर चेचक के बहुत दाग हैं, आंखें बड़ी और रोशन और निगाहें तेज़ हैं, चेहरे का नक्शा खड़ा खड़ा है। उस वक्त सफ़ेद तंग पैजामा और सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद ही अंगरखा पहने हुए थे। सर पर मलमल की टोपी गोल चंदवे की तरह की थी। मेरा सहन में कदम रखना था कि मेरे पाँव की आहट सुनते ही हाफिज़ वीरान ने चौंक कर कहा, कौन है? मैंने कहा कि करीमुद्दीन, उस्ताद ज़ौक़ की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उस्ताद ने अपना नाम सुनकर कहा, आइए आइए, अंदर तशरीफ़ लाइए। मैंने आदाब अर्ज़ किया। उन्होंने फरमाया, बैठो भाई बैठो। मैं हाफिज़ वीरां के पास चारपाई पर बैठ गया। कहा, फरमाइए कैसे तशरीफ़ लाना हुआ? मैंने अर्ज़ की कि मेरा इरादा काजी के हौज़ पर एक मुशायरा शुरू करने का है। 14 रजब तारीख मुकर्रर हुई है। अगर हुजूर भी ज़रा नवाजी कदम रंजा फरमाए तो बईद अज़ करम ना होगा। मेरा इतना कहना था कि हाफिज़ वीरां तो चिरागपा हो गए। कहने लगे, जाइए जाइए, कहाँ का मुशायरा निकाला है? उस्ताद को फुर्सत नहीं। इन मिर्ज़ा ले पालक के पास क्यों नहीं जाते जो ख्वाह-मख्वाह इनको आकर दिक करते हो? उस्ताद ने कहा, भाई हाफिज़ वीरां, तुम्हारी ज़ुबान नहीं रुकती, बैठे बैठाए दुनिया से लड़ाई मोल लेते हो। हाफिज़ वीरां कहने लगे, उस्ताद, जब वो आपको बुरा भला कहें तो हम क्यों चुप बैठने लगे? वो एक कहेंगे तो हम 100 सुनाएंगे। और तो और मियाँ आशिफ्ता को दिन लगे हैं। कल ही की बात है कि आपको नावड़ा कह रहे थे, मगर मैंने भी ऐसी खबर ली कि तमाम उम्र याद करेंगे। उनके 7 पुश्त को तौम डाला। उस्ताद हंस कर फरमाने लगे, ना भाई ना, तुम मेरी वजह से क्यों बला में पड़ते हो? मुझे जो जी चाहे सो कहे। मैंने उन सब का जवाब इस रुबाई में दे दिया है। तू भला हो तो बुरा हो नहीं सकता ए ज़ौक़। है बुरा वो ही कि जो तुझको बुरा जानता है, और अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है, क्योंकि बुरा कहने से उसके तू बुरा मानता है। मैंने इन सब का जवाब इस रुबाई में दे दिया है। तू भला हो तो बुरा हो ही नहीं सकता ए ज़ौक़। है बुरा वो ही कि जो तुझको बुरा जानता है, और अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है, क्योंकि बुरा कहने से उसके तू बुरा मानता है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं कल बारगाह सुल्तानी में हाजिर हुआ था। हज़रत ज़िल्लल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि इस मुशायरे में हम मिर्ज़ा फ़तेह उल मुल्क बहादुर को अपनी तरफ से भेजेंगे और अपनी गज़ल भी भेज कर मुशायरे की इज़्ज़त बढ़ाएंगे, और ये भी इशारा हुआ कि उस्ताद ज़ौक़ से भी कह देंगे, वो भी मुशायरे में ज़रूर आएंगे। ये सुनकर हाफिज़ वीरां तो ठंडे पड़ गए। उस्ताद ने फरमाया, भाई मुझे याद आ गया, कल शाम को हज़रत पीर मुर्शिद ने मुझसे फ़ी फरमाया था, और ये भी इरशाद हुआ था कि तू भी ज़रूर जावे मियाँ। मैंने इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा, मगर ये तो बता, तरह क्या रखी है? मैंने वाक़या अर्ज़ किया और कहा कि हज़रत जल्ल सुबहानी ने तरह का झगड़ा ही निकाल दिया। जो शख्स जिस बहर और जिस रदीफ़ काफ़िए में चाहे आकर गज़ल पढ़े। उस्ताद तो बहुत खूब कहते रहे, मगर हाफिज़ वीरां की तेवरी के बल नहीं गए। बराबर बड़बड़ाते ही रहे कि अल्लाह खैर करे, देखिए इस मुशायरे का क्या हश्र होता है। हज़रत पीर मुर्शिद भी बैठे बैठे अश्कले छोड़ा करते हैं, और वो अपनी कहे गए, मैं तो उठ सलाम कर चला आया। दूसरा हमला असदुल्ला खां गालिब पर था। चांदनी चौक से होता हुआ बिल्ली मारों में आया। हकीम महमूद खां साहब के मकान के सामने कासिम जान की गली कटी है। बाएं तरफ पहला ही मकान उनका था। ये मकान मस्जिद के पीछे है। उसके 2 दरवाजे हैं, एक मर्दाना, दूसरा जनाना। महल सहरा का एक रास्ता मर्दाने मकान में से भी है। बाहर के दरवाजे के दहलीज ज़रा सी धंसी हुई सी है। दरवाजे के ऊपर एक कमरा है, और कमरे के दोनों पहलुओं में 2 कोठरियां हैं, मगर
कोठरियाँ हैं। गर्मी में मिर्ज़ा साहब दोपहर के वक़्त इसी एक कोठरी में रहा करते हैं। दरवाज़े से गुज़रकर मुख्तसर सा सहन है और सामने ही दलान दर दलान है। जब मैं पहुँचा तो अंदर के दलान में गावे तकिए से लगे बैठे कुछ लिखे रहे थे। मिर्ज़ा नौशा को की उम्र कोई 50 साल की होगी। हसीन और खुश रूह आदमी है। कद ऊंचा और हाड़ बहुत चौड़ा चकला। मोटा नक्शा और सुर्ख सफ़ेद रंग है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जर्दी झलकती है। ऐसे रंग को मुहावरे में चंपई कहा जाता है। आगे के दो दांत टूट गए हैं। दाढ़ी भरी हुई है मगर घनी नहीं है। सर मुंडा हुआ है। इस पर लंबी सियाह पोस्तीन की टोपी है जो कलापा पाख से मिलती जुलती है पाख से मिलती जुलती है। ये एक बुर्का, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद मलमल का अंग रखा, उस पर हल्की जर्द ज़मीन का जामादार का चुग्गा। मेरी आहट पाकर लिखते लिखते आँख ऊंची की। मैंने आदाब किया, सलाम का जवाब दिया और आँखों से बैठने का इशारा किया। मैं एक तरफ बैठ गया। अभी बैठा ही था कि नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ां आ गए। ये अमीनुद्दीन खां साहब लोहारू के भाई हैं। रेख्ते में रक्षा और फ़ारसी में नेर तखल्लुस करते हैं। रेख्ता में रक्षा और फ़ारसी में नीर तखल्लुस करते हैं। कोई 40 साल की उम्र है। इंशा परदाजी, जोग्राफिया, तारीख़ इल्मुल हिसाब, अस्माउल रज़ाल, तहक़ीक़ लुग़ात और वाक़फ़ियत आमा में अपना जवाब नहीं रखते। मिर्ज़ा नौसा की खलीफा है। छोटा कद, बहुत गोरा रंग, नाजुक नाजुक नक्शा, गुलाबी आँखें, चुग्गी दाढ़ी, छरीदा बदन, गर्ज निहार खूबसूरत आदमी है। एक बुर्का, सफ़ेद पजामा और सफ़ेदी अंगरखा ज़ेब बदन था। कालिब चढ़ी हुई चोगोसिया टोपी सर पर थी। एक बड़ा रुमाल समोसा बनाकर शानों पर डाले हुए थे। मैंने उठकर सलाम किया। उन्होंने बढ़कर मसाफा किया और खामोश एक तरफ दो जानों निहायत अदब से बैठ गए। थोड़ी देर में मिर्ज़ा गालिब भी लिखने से फारिग हुए। पहले नवाब साहब की तरफ मुड़े और कहने लगे, मियाँ नैयर, तुम किस वक्त आ बैठे? भाई, इस मिर्ज़ा तिफ्ता ने मेरा नाक में दम कर दिया। जालिम की तबीयत की रवानी किस तरह कम नहीं होती। हर ख़त में 8-10 गज़लें इस्लाह के लिए भेज देते हैं। इस्लाह देते देते थक जाता हूँ। मेरी तरफ देख कर कहा, आप शायद मौलवी करीमुद्दीन साहब हैं? मैंने कहा, जी हाँ। फरमाने लगे, हज़रत, आपकी तशरीफ़ लाने का मकसद मुझे पहले ही से मालूम हो गया था। कल ही मियाँ आरिफ आकर मुझे से मुशायरे में चलने का वादा ले गए हैं। कहो मियाँ नैयर, तुम भी चलोगे? नवाब साहब ने कहा, जहाँ आप वहाँ मैं आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी ज़रूर हमरा चलूँगा। मिर्ज़ा साहब ने पूछा, मगर भाई अब तक इलाही नहीं आए। मुझको उनका कल से इंतज़ार है। ए लो, वो आ ही गए। भाई, बड़ी उम्र है। अभी मैं तुम ही को पूछ रहा था। नवाब अलाउद्दीन खां इलाही नवाब लोहारू के वली अहद हैं। कोई 23-24 साल की उम्र है। मुतवस्सित कद, गंदमी रंग, मोटा नक्शा, गोल चेहरा, शरबती आँखें और घनी चढ़ी हुई दाढ़ी है। लिबास में गलते का तंग मेहरी का पैजामा, सफ़ेद जामदानी का अंगरखा, उस पर सीना खुली हुई सियाह मखमल की नीम आस्तीन और सर पर सियाह मखमल की चौगसिया टोपी थी। वो भी आदाब करके एक तरफ बैठ गए और कहा, वाकई आज देर हो गई। मुझे खुद ख्याल था कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरी तरफ देखकर कहा, आपकी तारीफ़। मिर्ज़ा नौशा ने तमाम क़स्सा बयान किया और कहा, इलाही, तुमको भी चलना होगा। अभी तो तुम शायद लोहारू नहीं जा रहे हो। उन्होंने कहा, बहुत खूब, आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो मैं भी हाजिर होऊंगा। जब यह मरहला भी तय हो गया तो मैंने इजाज़त चाहिए वहाँ से रुखसत होकर नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां के मकान में आया। उन्होंने मर्दाने का एक हिस्सा मेरे लिए खाली कर दिया था। जो असबाब सुबह मैंने भेजा था उसको जमाया पाया। कपड़े उतारे, अंदर से खाना आया। खाकर थोड़ी देर सो रहा। 4 बजे के करीब उठकर हकीम मोमिन खां के यहाँ जाने की तैयारी की। हकीम साहब का मकान चीलों के कोचे में है।
راستے میں مولوی امام بخش صاحب صہبائی مل گئے. یہ کالج میں میرے استاد رہے ہیں. کھلا ہوا گندم گنگ رنگ ہے, کہیں کہیں چیچک کے داغ ہے, سر پر پٹھے ہیں. بڑے دبلے پتلے آدمی ہے, کوئی 40 کی عمر ہوگی. ایک برقع سفید پاجامہ, سفید انگرکھا کشمیری کام کا حبہ پہنتے ہیں اور سر پر چھوٹا سفید صحافہ باندھتے ہیں. یہ بھی چیلوں کے کوچے ہی میں رہتے ہیں. مجھ سے پوچھنے لگے کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا حکیم مومن خاں کے پاس. پوچھا کیا کام ہے؟ میں نے حال بیان کیا. کہنے لگی چلو میں بھی وہیں جا رہا ہوں. حکیم آغا جان کے چھتے کے سامنے خاں صاحب کا مکان تھا. بڑا دروازہ ہے, اندر بہت وسیع صحن اور اس کے چاروں طرف عمارت ہے. دو طرف دو سہچنیاں ہیں اور سامنے بڑے بڑے دلان در دلان. پچھلے دلان کے اوپر کمرہ ہے, سامنے کے دلان کے چھت کے کمرے کا صحن کر دیا ہے, لیکن منڈیر پر بہت چھوٹی رکھی ہے. دلانوں میں چاندنی کا فرش ہے. اندر کے دلان میں بیچوں بیچ قالین بچھا ہوا ہے. قالین پر گاؤ تکیے سے لگے حکیم صاحب بیٹھے ہیں. سامنے حکیم سکھانند تخلص رقم اور مرزا رحیم الدین حیا مؤدب دو زانو بیٹھے ہیں. معلوم ہوتا تھا کہ کوئی دربار ہو رہا ہے کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے اور بلا ضرورت بولنے کا یارہ نہیں تھا. حکیم مومن خاں کی عمر تقریباً 40 سال تھی. کشیدہ قامت تھے, سرخ و سفید رنگ تھا جس میں سبزی جھلکتی تھی. بڑی بڑی روشن آنکھیں, لمبی لمبی پلکیں, کھینچی ہوئی بھویں, لمبی ستون ناک, پتلے پتلے ہونٹ, ان پر پان کا لاکھا جما ہوا, مسیح آلودہ دانت, ہلکی ہلکی مونچھیں, خشک خاصی داڑھی, بھرے بھرے بازو, پتلی کمر, چوڑا سینہ اور لمبی لمبی انگلیاں. سر پہ گھنگرو والے لمبے لمبے بال زلفیں بن کر پشت اور شانوں پر بکھرے ہیں. کچھ لٹیں پیشانی کے دونوں طرف کانکلوں کی شکل رکھتی ہیں. کانوں کے قریب تھوڑے بالوں کو موڑ زلفیں بنا لیا تھا. بدن پر شربتی ململ کا نیچی چولی کا انگرکھا تھا, لیکن اس کے نیچے کرتا نہ تھا اور جسم کا کچھ حصہ انگرکھے کے پردے میں سے دکھائی دیتا تھا. گلے میں سیاہ رنگ کا فیتا, اس میں چھوٹا سا سنہری تعویذ کا کریزی رنگ کے دوپٹے کو بل دے کر کمر میں لپیٹ لیا تھا اور اس کے دونوں سرے سامنے پڑھے ہوئے تھے. ہاتھ میں پتلا سا خاص پشت, پاؤں میں سرخ گل بدن کا پیجامہ, مہریوں پر سے تنگ, اوپر جا کر کسی قدر ڈھیلا. کبھی کبھی ایک برقع پاجامہ بھی پہنتے تھے, مگر کسی قسم کا بھی ہو ہمیشہ ریشمی اور قیمتی ہوتا تھا. چوڑا سرخ نیفا, انگرکھے کی آستینیں آگے سے کٹی ہوئی, کبھی لٹکی رہتی تھی اور کبھی پلٹ کر چڑھا لیتے تھے. سر پر گلشن کی 2 پلڑی ٹوپی, اس کے کنارے پر باریک لیس. ٹوپی اتنی بڑی تھی کہ سر پر اچھی طرح منڈھ کر آ گئی تھی. اندر سے مانگ اور ماتھے کا کچھ حصہ اور بال صاف جھلکتے تھے. غرض یہ کہ نہایت خوش پوشاک اور جامہ زیب آدمی تھے. جب میں اور مولوی صہبائی دونوں پہنچے تو حکیم صاحب عالم مرزا رحیم الدین حیا سے کہہ رہے تھے, صاحب عالم تمہارے شطرنج کے نقشوں نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے. 1 ہوں 2 ہوں, آخر یہ روز روز کی فرمائش کوئی کہاں تک پوری کرے. صاحب عالم نے کہا استاد کیا کروں, ریزیڈنٹ بہادر کے پاس ولایت سے شطرنج کے نقشے حل کرنے کو آیا کرتے ہیں. کچھ تو میں خود حل کر کے ان کے پاس بھیج دیتا ہوں, جو سمجھ میں نہیں آتے وہ آپ کے پاس لے آتا ہوں. حکیم صاحب نے نظر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور ہمارا سلام لے کر کہا بیٹھیے بیٹھیے. ہم بیٹھ گئے اور پھر صاحب عالم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے, میاں حیا جو نقشہ تم لائے ہو وہ تو میرے خیال میں کچھ پیچیدہ نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ سرخ مہروں کو مات ہوگی, میں کہتا ہوں نہیں سبز کو ہوگی. تم بشاد بچھاؤ, میں ابھی سمجھائے دیتا ہوں. اچھا ذرا مولوی صہبائی سے بات کر لوں اور میاں سکھانند تم بیٹھے
इंतज़ार करते रहो। मैं हुक्म लगा चुका हूँ कि जब तक पूरब की तरफ से छिपकली का जोड़ा ना आ जाए, ये सामने की दीवार से ना जाएगी। इसका जोड़ा आए फिर आए। सखानंद हकीम थे, रकम तखल्लुस करते थे, पूरे में रहते थे। कोई 40 साल की उम्र थी। रेख्ते में शाह नसीर के और रमल में खां साहब के शागिर्द थे। बड़े खुश पोशाक, खुश वज़ा, खुश इखलाक, ज़रीफ़ुल तबा, हलीम, खूबसूरत और शकील आदमी थे। उस्ताद का ऐसा अदब करते थे जैसे कोई बेटा बाप का करता है। हकीम साहब की बातें सुनकर बहुत खूब मुनासिब कहते रहे। इनसे गुफ्तगू करके हकीम साहब हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे, अरे भाई सहबाई, तुम तो कई दिन से इन्हें नहीं आए, कहो खैरियत तो है? और आपके साथ ये साहब कौन हैं? मौलवी सहबाई ने कहा, ये पहले कॉलेज में मेरे शागिर्द थे, अब मतबा खोल लिया है, वहाँ मुशायरा करना चाहते हैं, आपको तकलीफ देने आए हैं। हकीम साहब ने कहा, बस साहब मुझे माफ़ी कीजिए, अब दहली के मुशायरे शरीफों के जाने के काबिल नहीं रहे। एक साहब हैं, वो अपनी उम्मत को लेकर चढ़ आते हैं। शेर समझने की तो किसी को तमीज़ नहीं, मुफ्त में वाह वाह सुबहान अल्लाह गुल मचाकर तबीयत को मनगज़ कर देते हैं। ये कह नहीं समझते कि साहिब दो चीज़मी सिकंदर कदर सोरा तहसीन नाशनास व सुकूत सखन सनास। दूसरे साहब हैं, वो हुद को हाथ लिए फिरते हैं और खामखा उस्तादों पर हमले कराते हैं। खुद तो मैदान में नहीं आते, अपने नाअहल पट्टों को मुकाबले में लाते हैं। इस रोज़ जो उस जानवर से ये शेर पढ़कर मरकज़ महवरे गर्दों ब लबे आब नहीं, नाखून कौ से कज़ा सबाए मजरा नहीं। कहा, यह गालिब के रंग में लिखा है, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझको किस कदर नागवारा गुजरा है। गालिब के रंग में शेर कहना तो कजा, वो या उनके उस्ताद पहले मिर्ज़ा नौशा के शेरों को समझ तो लें। अब रहे मेरे साहब, तो उनकी बात दूसरी है। वो भी वाहियात बकते हैं, मगर किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि उनकी वजह से मुशायरे में कुछ चहल पहल हो जाती है। भाई, मैंने तो इसी वजह से मुशायरे में जाना ही तर्क कर दिया है। मैंने अर्ज़ की, इस मुशायरे में उस्ताद ज़ौक़ और मिर्ज़ा नौशा ने आने का वादा कर लिया है। हज़रत जिल्ल सुबहानी की गज़ल भी आएगी। फरमाया, हर शख्स मुख्तार है, खुद आइए चाहे गज़ल भेजे, मैं तो ना आऊँगा ना गज़ल भेजूँगा। ये बातें हो ही रही थी कि एक बनारस का सौदागर कपड़ों के 2 गट्ठे लेकर आया। शहर में जब कोई कपड़ों का सौदागर आता है तो हकीम साहब के पास उसका आना लाजमी था। रेशमी कपड़ों से उनका इश्क था। कोई कपड़ा पसंद आता तो फिर कीमत की परवाह नहीं करते थे, जो मांगता देते। उस सौदागर ने आकर एक गठरी मजदूर के सर पर उसे उतारी। उसमें से से एक छिपकली नीचे गिरी और दौड़कर सामने की दीवार पर चढ़ गई। जो छिपकली पहले से दीवार पर जमी बैठी थी, वो लपक कर उससे आ मिली और दोनों मिलकर एक तरफ चली गई। हम लोग बैठे ये तमाशा देखते रहे। जब दोनों छिपकलियाँ चली गई तो हकीम साहब ने कहा, मियाँ रकम, तुमने देखा? उन्होंने कहा, जी हाँ, एक खाने का हिसाब लगाने में मुझसे गलती हुई। मैंने जो अपनी राय पर इसरार किया था, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। कहने लगे, इसका ख्याल ना करो, इंसानी ही से गलती होती है। हाँ तो मियाँ सहबाई, मुशायरे के मुतालिक हमारा तो साफ जवाब है। मैंने जवाब देखा कि खान साहब हाथों से निकले ही जा रहे थे तो मुझे नवाब ज़ैनुल आबिदीन साहब का आखिरी नुस्खा याद आया। मैंने कहा, मुझे तो इस मुशायरे से बराए नाम ताल्लुक़ है। सब किया धरा नवाब ज़ैनुल आबिदीन खास आरिफ का है। वो बहुत बीमार हुए हैं और उनको अब ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रही। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि मरते मरते एक ऐसा मुशायरा देख लें जिसमें दिल्ली की तमाम कामिलीन फ़न जमा हों। वो खुद हाजिर होते, मगर हकीम एहसन अल्लाह खान साहब ने उनको कहीं आने जाने से मना कर दिया है। ये आखिरी फ़ुकरा मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। खान साहब बड़े गौर से मेरी बात सुनते रहे। मैं खामोश हुआ तो मौलवी इमाम बख्श साहब की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे, अफसोस है, क्या खुश फ़िक्र और ज़हीन शख्स है। ये उम्र और मायूसी, सच है, हमेशा
रहे नाम अल्लाह का। मेरी तरफ देख कर कहा, अच्छा भाई तुम जाओ, मेरी तरफ से आरिफ से कह देना कि मियाँ मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने देखा कि ये जादू चल गया तो और पांव फैलाए और कहा, नवाब साहब ने ये भी फरमाया था कि मौलवी साहबाई साहब, मुफ्ती सदरुद्दीन साहब और नवाब मुस्तफ़ा खां साहब शेफ्ता को भी अपने हमरा लाइएगा, जो तो इनायत होगी। हकीम साहब कहने लगे, मियाँ साहबाई से तो मैं अभी कह देता हूँ, अब रहे आज़रदा और शेफ्ता तो वापस जाते जाते उनसे भी कहते जाओ, ये कह देना कि मैंने तुमको भेजा है। हाँ, तारीख क्या मुकर्रर की है, मुशायरा कहाँ होगा और तरह क्या है? मैंने तारीख बताकर मकान का पता दिया। तरह के मुतालिक हज़रत जहाँपनाह के हुज़ूर में जो गुफ्तगू हुई थी वो बयान की। कहने लगे, हमारा बादशाह सलामत भी अजीब चीज़ है, जो सूझती है नहीं सूझती है। शायद ऐसा मुशायरा कहीं भी ना हुआ होगा कि जिसमें तरह ना दी गई हो। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि झगड़े का झोंपड़ा ही नहीं रहा, मगर भाई बात यह है कि जब तक मुकाबले की सूरत ना हो, न शेर कहने में जी लगता है, न पढ़ने में लुत्फ आता है। यह कहकर वो कपड़े देखने में मशगूल हो गया और मैं सलाम करके रुखसत हुआ। चितली कबर के करीब हवेली अजीज़ आबादी के सामने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब का मकान था। उसके नज़दीक मटिया महल में नवाब मुस्तफ़ा खां साहब शेफ्ता रहते हैं। मुफ्ती सदरुद्दीन के यहाँ जाकर मालूम हुआ कि शेफ्ता भी मुफ्ती साहब ही के पास बैठे हुए हैं। मैंने कहा, चलो इससे बेहतर मौका मिलना मुश्किल है, दोनों से एक ही जगह मिलना हो गया। ये सोचकर अंदर गया। मकान कोठी के नमूने का है। अंग्रेज़ी और हिंदुस्तानी दोनों वज़ा को मिलाकर बनाया गया है। सहन बहुत बड़ा नहीं है, इसमें मुख्तसर सी नहर है, सामने दलान और पहलू में अंग्रेज़ी वज़ा के कमरे हैं। बाहर के दलान में कवाड़ लगाकर उसको भी कमरे की शक्ल का कर दिया है। दलानों से मिला हुआ ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर तख्त बिछे हुए थे। इन पर चांदनी का फर्श और दो तरह गांव तकिए लगे हुए थे। तख्तों पर मुफ्ती साहब और नवाब साहब बैठे बातें कर रहे थे। मुफ्ती साहब की उम्र कोई 56-57 साल की थी। गदाज जिस्म, सांवला रंग, छोटी छोटी आंखें, ज़रा अंदर को धसी हुई, भरी हुई दाढ़ी, बहुत सीधी सादी वज़ा के आदमी हैं। ज़ाहिरी नुमाइश से कोई सरोकार नहीं। बदन में सफ़ेद एक बरका पजामा, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद ही सहाफ़ा। जामा जेबी में हकीम मोमिन खां के बाद दहली में नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ही का नंबर था। उनका रंग गहरा सांवला था, लेकिन नाक नक्शा गजब का पाया था। उस पर नीची सियाह गोल दाढ़ी बहुत भली मालूम होती थी। जिस्म के किसी कद्र भारी और कद मुतवस्सित था। लिबास में भी ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करते थे। तंग मोहरी का सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद कुर्ता, नीची चोली का सफ़ेद अंगरखा और किबला नुमा पच गोशिया टोपी पहने हुए थे। तकरीबन 39-40 साल की उम्र है। मैं आदाब करके तख्त के एक कोने पर दो जानू बैठ गया। मुफ्ती साहब ने आने का सबब पूछा। मैंने हकीम मोमिन खां का पैगाम पहुंचा दिया। मुफ्ती साहब ने बड़े ताज्जुब से पूछा, खां साहब ने तो मुशायरे में ना जाने का अहद कर लिया था। भाई शेफ्ता, ये क्या मामला है? या खुद नहीं जाते थे तो दूसरों को भी साथ घसीट रहे हैं? मैंने नवाब ज़ैनुलाब्दीन खां आरिफ का वाक़या बयान किया। कहने लगे, हाँ तो ये यूँ कहो ये बात है, वरना मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी कि हकीम साहब मुशायरे में जाएं। अच्छा भाई आरिफ से कह देना कि मैं और शेफ्ता दोनों आएंगे। यहाँ से छुट्टी हुई तो मैं ये समझा कि गोया गंगा नहा लिया। खुशी खुशी आकर नवाब ज़ैनुलाब्दीन साहब से वाक़या बयान किया। वो भी मुतमईन हो गए। जब हकीम मोमिन खां का हाल बयान किया तो उनके आंसू निकल आए। कहने लगे, मियाँ करीमुद्दीन, तुमको ये भी मालूम है कि मेरी हकीम साहब से सफाई नहीं है। मैंने कहा, नवाब साहब आप क्या फरमाते हैं? उन पर तो आपकी बीमारी का सुनने का ऐसा असर हुआ कि बयान नहीं कर सकता। शायद उनका सगा भाई भी होता तो इतना ही असर होता। मुफ्ती साहब से मालूम हुआ कि उन्होंने मुशायरे में न जाने का अहद कर लिया था। सिर्फ आपकी वजह से उन्होंने ये अहद तोड़ा है।
نواب صاحب نے کہا میاں تم ان کو ان لوگوں کی محبتوں کا حال کیا معلوم، یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے دشمن کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ خیر اس کو جانے دو، اب یہ بتاؤ تمہارا مکان خالی ہو گیا یا نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل خالی ہے، حکم ہو تو میں بھی خدمت میں رہ کر مدد کروں؟ فرمائے نہیں بھائی نہیں، جہاں دو آدمیوں نے مل کر کسی کام میں ہاتھ ڈالا وہ خراب ہوا، تم اس انتظام کو بس مجھ پر چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا کام جانے، بلکہ تم ادھر آنا بھی نہیں۔ تم نے آ کر اگر میخ نکالی تو مجھ پر دوہری تہری محنت پڑے گی۔ تو ریڈنگ کا یہ سلسلہ ختم ہوا، یہ چیپٹر ختم ہوا، اور اس کا جو بھی خلاصہ ہے وہ میں کوشش کروں گی جلد سے جلد ایک ویڈیو میں دے دوں۔ تب تک آپ کتاب سے، آپ سب کے پاس کتابیں موجود ہے آلریڈی، جو کتاب گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے اسی کتاب میں یہ موجود ہے، پیج نمبر 117 میں اس کا اینڈنگ ہے، 103 سے شاید شروع ہے۔ تو آپ اسے اپنے ریڈنگ میں رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کویشچن وغیرہ جو بھی معنی آپ کو سمجھ نہیں آئے اس کے الفاظ معنی بھی آپ دیکھ کر ڈکشنری سے رکھیے، اور آنے والی ویڈیو میں اس کا خلاصہ پیش کروں گی۔ تب تک آپ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر کے رکھیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو کچھ کمنٹس بھی کیجیے، اگر سوالات ہوں تو ضرور پوچھیے گا۔ شکریہ۔